Gurukuल Shiksha. Today we will talk about a new chapter, current electricity. So very first we will talk about what is current electricity. Basically, current electricity is a branch of physics that deals with charge in motion. That means whenever the charge in a circuit is in motion, then the branch of the physics that deal with the charge in motion is called current electricity. Now let's talk about very important term, electric current. So what is electric current? Basically, electric current, it is called the rate of flow of charge through a cross-section area so we can see electric current is defined as rate of flow of charge through a cross-section area. Suppose we have a conductor like this. This is our conductor. इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए से डिफाइन करता हूं और कंडक्टर की लेंथ को लेट डिफाइंड बाय एल. ओके, हम ये एज्यूम करते हैं इस कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है और इस चार्ज के फ्लो की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, नाउ लेट सपोज इन एवरी dt टाइम, इन dt time period we have a flow of charge that is dq. So according to the definition we can say if dq charge flow in dt time, then electric current which is denoted by I can be given as dq upon dt. This is the formula of electric current. Now, one more thing we have to understand, if the charge flow do not change with respect to the time, that means in dt time जो charge flow कर रहा है वो constant रहे, so we can say I must be equal to q upon t for the constant flow of charge. That means in every t or dt time we have a constant charge q which is flowing through the circuit. Now let's talk about unit of electric current. Now we know that I can be, so let's talk about unit of electric current. We know that I can be given as q upon t, where q is what? Charge, and t is time. So we know that unit of charge is coulomb and unit of time is second. So coulomb upon second is called ampere, which is denoted by amp. This is the unit of electric current. Now in different kind of examination, whether it is your board exam or other examination, they can ask you what is 1 ampere. So suppose we have a question, what is 1 ampere? Question, what is 1 ampere? Okay, by the definition of electric current we have the formula I is equals to q upon t. Suppose we have q equals to 1 coulomb and t equals to 1 second. Now putting this value in formula of electric current, now putting values in formula, we can say I is equals to 1 coulomb upon 1 second. 1 upon 1 is 1 and coulomb upon second is called ampere. So we can say 1 ampere is the amount of electric current flow through the circuit whenever the 1 coulomb charge flow in the circuit in 1 second time period. That means जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से 1 सेकंड में 1 coulomb चार्ज फ्लो करेगा तो सर्किट से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी that is called 1 ampere. Now let's talk about two type of current, average current and instantaneous current. So first, what is average current? So average current is denoted by I average. So average current is basically denoted as amount of charge flow in a given time interval. So
delta q upon delta q, so delta q upon delta t is the known as average current. As we know, delta q can be denoted as q2 minus q1, which is according to the time which is mentioned in the question, and delta t can be given as t2 minus t1. Now इन दोनों वैल्यू को ऊपर गिवन इक्वेशन में पुट अप करेंगे, सो वी कैन से I average is equals to q2 minus q1 upon t2 minus t1. नाउ एवरेज करंट को मैं क्वेश्चन के द्वारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा. नाउ अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की. इंस्टेंटेनियस करंट को I और यू कैन से INT से डिफाइन कर सकते हो. इंस्टेंटेनियस करंट बेसिकली चार्ज फ्लो होता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम. दैट मींस any instant of time पे if you are talking about electric current, that is instantaneous current. Suppose if we are talking about electric current at fixed 6 second, that means that is instantaneous. If we are talking about electric current in first 6 second, that means 0 से लेके 6 second तक का हमने एक टाइम गैप लिया है, then this is the average current, क्योंकि हमने एक टाइम इंटरवल ले लिया है. Now if I'm talking about find the amount of electric current at 6th second, तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम की बात की है, तो वो वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस करंट. और इंस्टेंटेनियस करंट को I इक्वल्स टू dq अपॉन dt फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं. ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सपोज वी हैव गिवन अ क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन चार्ज गिवन है 4t स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2. नाउ you need to find out first average current from 1 second to 5 second time interval. Instantaneous current at 5th second time. Okay, now सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे एवरेज करंट भी फाइंड आउट करनी है और इंस्टेंटेनियस करंट भी फाइंड आउट करनी है. नाउ इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी, जब भी एवरेज करंट की बात आती है तो एक टाइम गैप मिल रहा है 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक. दैट मींस आपको एक टाइम गैप मिल रहा है. नाउ इंस्टेंटेनियस में आपको फिक्स्ड एक टाइम की बात की है, फिक्स 5th सेकंड पे ही करंट की वैल्यू निकलेगी. दैट मींस एट एन इंस्टेंट आपको एक फिक्स टाइम की बात करेगा तो इंस्टेंटेनियस होगा, अगर टाइम लैप और टाइम इंटरवल की बात करेगा तो वो एवरेज होगी. नाउ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, नाउ सो एवरेज करंट का फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट. आई कैन से Q2 इज इक्वल्स टू, नाउ Q की वैल्यू है. नाउ Q2 क्या होगा, जब इस क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू t की वैल्यू 5 रख दूंगा तो Q2 बन जाएगा. सो वैल्यू पुट अप करते हैं, 4 into 5 स्क्वायर प्लस 3 into 5 plus 2. Now 5 square 25, 25 into 4 100 plus 15, 3 into 5 15 plus 2. So we have 117 coulomb. This is the charge Q2. Now I need to find out the Q1. Now इस क्वेश्चन में t की वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे. सो वैल्यू पुट अप करते हैं. सो मैं कह सकता हूं 4 into 1 square 3 into 1 plus 2. Now 4 into 1 का स्क्वायर that is 1. So 4 into 1 we have 4 plus 3 plus 2. So 4 3 7 plus 2 9 coulomb. We have the charge Q2. Now T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. T2 we have given 5 second, so 5 second, and T1 we have given 1 second. Now ये जितना भी डेटा है, इस डेटा की वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट अप करते हैं. एंड नाउ आई कैन से I average is equals to Q2. We have 117 minus Q1, that is 9 upon 5 minus 1. 117 minus 9, that means 108 upon 4. 4 2 जा 8, 4 7 जा 28. सो एवरेज करंट मुझे मिल रही है 27 एम्पेयर, और यू कैन राइट इट डाउन एज 27. नाउ लुक एट दिस,
एम्पियर पूरा नहीं लिखना चाहो तो आप 27A करके भी छोड़ सकते हैं. दैट मींस 27 एम्पियर इज योर करंट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस करंट फॉर द सेम क्वेश्चन. नाउ वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस is I equals to dq upon dt. Now what I have to do, d by dt, this is differentiation. Okay, q की वैल्यू यहां पे पुट अप करते हैं, सो मुझे मिलेगा 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2. मैं ये सपोज करके चलता हूं आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता. ओके, नाउ सपोज कीजिएगा, मैं यहां पे आपको हल्का सा ब्रीफ ऑन एक्सप्लेनेशन देता हूं डिफरेंशिएशन का. सपोज कीजिए आपके पास एक फॉर्मूला है d बाय dt ऑफ x की पावर d बाई dt ऑफ t की पावर n. नाउ t की पावर n की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा गाइस, पावर को आप आगे लाएंगे और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड. नाउ d बाई dt ऑफ t की पावर 5. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. आप डिफरेंशिएशन करना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पावर को आगे ले आओ तो 5t 5 माइनस 1 तो 4. ये आपका आंसर आ गया गाइस. ठीक है, नाउ ये सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई इन दिस. ओके, डिफरेंशिएशन करना है, सो करते हैं. ओके गाइस, आए. अब देखो ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी. बट एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा. अप्लाई करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. d बाय dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस d बाय dt ऑफ 3t प्लस d बाय dt ऑफ 2. इन वैल्यूज को मैं ब्रैकेट में पुट अप कर देता हूं क्योंकि इन वैल्यूज का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं गाइस. नाउ इस फॉर्मूले पे आते हैं. ठीक है, I इज इक्वल्स टू पावर आगे तो 4 2 जा 8 पावर माइनस 1 2 माइनस 1 दैट इज 1 और t की पावर 1 को मैं t लिख सकता हूं. ओके, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, पावर आगे 3 इंटू 1 3 और t की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 यानी कि 1 होता है तो 3 इंटू 1 प्लस 2 एक कांस्टेंट टर्म है. मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहता है, अवकलन 0 रहता है तो 0. तो गाइस मुझे यहां पे मिलेगा I इज इक्वल्स टू 8t प्लस 3. नाउ क्वेश्चन ये सब बोल रहा है कि हमको करंट निकालने 5th सेकंड में. दैट मींस इस क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू ड्राइव की है क्वेश्चन से इंस्टेंटेनियस करंट के लिए t की वैल्यू आ रही है. अब t की जगह मैं 5 को पुट अप कर दूंगा क्योंकि मुझे 5th सेकंड पे निकालनी है. अगर गाइस आपको ये 3rd सेकंड में निकालनी होती तो मैं क्या करता, यहाँ पे t की वैल्यू 3 लिखता. अगर आपको सेकंड में निकालनी होती तो मैं t की वैल्यू 2 रखता. सो वैल्यू को पुट अप करता हूं तो मैं कहूंगा I एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 5 का मतलब है आप करंट निकाल रहे हैं कब, जब t इक्वल्स टू यानी कि टाइम क्या हो 5 हो तब. सो 8 इंटू 5 प्लस 3, सो वी विल गेट 43 एम्पियर. ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ गई. नाउ सेम क्वेश्चन अगर मैंने एवरेज करंट निकाली 1 सेकंड टू 5 सेकंड तो हमारे पास एवरेज करंट की वैल्यू आ रही है 27 एम्पियर. नाउ सेम क्वेश्चन अगर मैंने इंस्टेंटेनियस यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फाइंड आउट की तो आई एम गेटिंग 43 एम्पियर. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है. ठीक है, एवरेज करंट हमेशा एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकलेगी और इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा एक फिक्स टाइम के बारे में बात करेगी. Now let's talk about direction of electric current. कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, वी आर हैविंग अ कंडक्टर एंड दिस इज आवर कंडक्टर. कंडक्टर कैन बी योर वायर रॉड एनीथिंग. ओके, सो सपोज कीजिए एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ में l अज्यूम करके चल रहा हूँ. ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी और वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये हमारा सोर्स है जिसका वोल्टेज V है. ओके, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल. देखो स्टार्टिंग में जो करंट है ये डिस्कवर की गई थी बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से ही ये माना गया है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है I, ये गिवन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव. सपोज कीजिएगा करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रही है तो ये करंट ऐसे मूव करेगी और इधर से बाहर निकल के वापस करंट I बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी. ठीक है, नाउ सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ.
बट एक प्रॉब्लम है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर की थी वो था 17th सेंचुरी। नाउ उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो मैं कहता हूं इन अर्लियर टाइम जो करंट की जो डायरेक्शन दे रखी थी वो आपके पास डायरेक्शन थी पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, नाउ लेटर ऑन इन 19th सेंचुरी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे थॉमसन। सो मैं नेम पुट अप कर देता हूं, जे थॉमसन। एंड थॉमसन ने क्या किया, ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। ओके, इसने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। नाउ अब गाइस थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, उसके बाद उसने एक अजम्पशन दी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट ये है ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार कर देता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू थॉमसन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट मींस जब सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो जीरो हो जाएगा दैट मींस सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट भी गाइस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नाउ एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि जो सर्किट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गाइस ये जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ध्यान से समझिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन भी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की वजह से होना चाहिए। तो थॉमसन का यह मानना था कि करंट की जो डायरेक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होनी चाहिए। बट अर्लियर हमको ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जा रहा है, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ एक चीज मैं ये जानता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, उनके फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो थॉमसन का जो रीजन है वो डेफिनेटली अपने आप में एक वैलिड रीजन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब क्वेश्चन ये आता है इन दोनों में से करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है। तो गाइस हुआ क्या, इस थ्योरी की बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, फर्स्ट हमारी करंट जो रही दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट और गाइस सेकंड करंट हमारे पास रही इलेक्ट्रॉनिक करंट। नाउ कन्वेंशनल करंट क्या होती है? कन्वेंशनल करंट वो करंट है जिसकी डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। ये करंट की डायरेक्शन रहेगी, ये कन्वेंशनल करंट है। नाउ चूंकि जे थॉमसन भी सही थे तो एक ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। गाइस ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ CBSE. I don't know the exact year, maybe it was 2015 or 2016. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। 90% स्टूडेंट ने आंसर रॉन्ग दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। उनको ये लगता था कि बुक में करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वी हैव टू टाइप ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट जो है इसको हम जनरल इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, जो हमारे बुक्स में डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगी तो जनरली डायरेक्शन हम यही देंगे, कौन सी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नाउ बट जब बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की तब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इसकी डायरेक्शन देंगे। सो ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, तो गाइज ये बन जाएगी तुम्हारी कन्वेंशनल करंट। वाई? क्योंकि देखो ये कंडक्टर का ये वाला जो एंड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये रहेगा गाइस पॉजिटिव पोटेंशियल पे।
ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो गाइज ये रहेगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। अब देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये कन्वेंशनल करंट हो जाएगी। अगर कोई करंट तुम्हारी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो गाइज वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट। आई होप आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा, कब कन्वेंशनल करंट होगी और कब इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी। थैंक यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? बेसिकली चार्ज कैरियर आर द पार्टिकल्स जिनके फ्लो करने की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। अब गाइस डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैरियर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर, और यू कैन से कंडक्टर को आप मेटल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल्स जो भी रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती है। सो वी कैन से कंडक्टर और मेटल्स। नाउ जो भी कंडक्टर और मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं गाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो मैं कह सकता हूं इन कंडक्टर और इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आवर चार्ज कैरियर। नाउ सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। देखिए गाइस, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। दैट मींस जब भी टेम्परेचर 0 केल्विन होगा दे विल नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट उनसे फ्लो ही नहीं करेगा। और जैसे ही टेम्परेचर में राइज होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। दैट मींस ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सेमी मींस हाफ कंडक्टर ये रहते हैं, और दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अच्छा होगा मोर देन 0 केल्विन तो फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब गाइस ये होल्स होते क्या है? होल्स एक पॉजिटिव वैकेंट प्लेस होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब भी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके निकलेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर से, तो उसकी जगह पे एक खाली जगह रह जाएगी, वैकेंट प्लेस रह जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है तो वो खाली जगह पॉजिटिव बन जाएगी और उनको हम बोलते हैं होल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसुलेटर्स। गाइस इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती तो इनमें नो चार्ज कैरियर प्रेजेंट। अब आपसे क्वेश्चन राइज हो सकता है, क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? डेफिनेटली इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट क्या इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर होता। नाउ फोर्थ वी हैव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? आपने देखा होगा केमिस्ट्री में जो भी सेल होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। सो मैं कह सकता हूं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी हैव पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस व्हिच एक्ट एज चार्ज कैरियर। लास्ट वी हैव गैसेस। नाउ गैस और गैसेस, गाइस गैस में कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, बट गैसेस को एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर मैं आयोनाइज करता हूं। सो आई विल से आफ्टर आयोनाइजेशन, सो जैसे ही आयोनाइज करता हूं तो उसके बाद इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज एक्ट करेंगे एज अ चार्ज कैरियर। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट करंट टाइम ग्राफ। दैट मींस करंट और टाइम के बीच में ग्राफ रहेगा, तो उस कंडीशन में मैं करंट को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं? बेसिकली करंट टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं करंट को दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट, आप इस ग्राफ को समझिए, सपोज कीजिएगा वी हैव गिवन अ ग्राफ लाइक दिस। दिस इज टाइम, इस तरफ करंट की पॉजिटिव वैल्यू है
and here we have negative value of electric current. This is our origin or O point. Now suppose कीजिए if current changing periodically with respect to the time, then this type of current is called alternating current or alternative current or AC. This is called alternating current or AC. Now AC करंट में क्या होता है गाइस, करंट हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव रहती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव रहती है. सो एवरेज करंट ओवर ए फुल साइकिल इज जीरो. यहां पे गाइस इस पॉइंट ओ डैश पे इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 1 साइकिल, और फुल साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू जीरो रहती है. नाउ गाइस ये जो ग्राफ का सबसे पीक पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पीक वैल्यू, or you can also call it amplitude. Okay, now alternating current, सपोज कीजिए एक साइकिल यहां पे t टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, तो हाफ साइकिल कंप्लीट होगा t/2 एंड t/4 टाइम वो टाइम होगा जिसमें करंट की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगी. ठीक है. नाउ 3t/4 टाइम वो रहेगा जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव रहेगी एंड एवरेज करंट in a full cycle is always zero. So this is your positive peak value and this is the peak value in negative cycle. अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एडिशनल बताता हूँ कि हमारे घर के अंदर जो करंट आती है दैट इज एसी गाइस. ठीक है, एसी करंट घर में आती है. अभी क्वेश्चन ये है कि घर के अंदर जो करंट आती है उससे हमें करंट लगता है, जबकि फुल साइकिल में करंट की वैल्यू तो जीरो हो रही है. गाइज आपको एक चीज समझनी है, फुल साइकिल में करंट की वैल्यू तो जीरो हो रही है यूजिंग दिस ग्राफ. यस, जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में उतना नेगेटिव नेक्स्ट हाफ साइकिल में. एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन फुल साइकिल इज जीरो. बट हमारे घर में जो करंट आती है दैट इज RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हिच वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन इन चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. गाइज डायरेक्ट करंट के मैं दो टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट, जो डायरेक्ट करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी. दैट मींस अगर वो पॉजिटिव साइकिल में है तो वो पॉजिटिव रहेगी, इफ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगी. दैट मींस एक ही डायरेक्शन रहेगी. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, करंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव इसकी वैल्यू नहीं है और सिर्फ पॉजिटिव चल रही है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. अब ये जो डायरेक्ट करंट है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है. सपोज कीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर. नाउ ये पूरे टाइम ग्रुप में यहाँ पे कोई भी टाइम लैप ले लें, आपको करंट की वैल्यू 2 एम्पियर ही मिल रही है, यानी कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन मिल रही है. सो इसको बोलेंगे कांस्टेंट डीसी. कांस्टेंट डीसी दैट मींस डायरेक्ट करंट. एक डायरेक्ट करंट का एक टाइप और होता है विच इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी. इसमें गाइस करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव रहेगी बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी. सो ऑन द बेसिस ऑफ current time graph we have two type of electric current. First is AC, second is direct current. अब direct current के भी दो टाइप है, एक जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, दूसरे में मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, बट दोनों में करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, दैट इज पॉजिटिव. नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट डज इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट. नाउ पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में रीड आउट किया है. सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी गाइस, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होती है. सो आई विल से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ जिस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. MEG मतलब मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ वी हैव अ स्केलर क्वांटिटी. So what is scalar quantity? Guys, scalar quantity वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है. So I'll say magnitude, only magnitude, no direction.
आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ प्रेजेंट रहती हैं। सो दिस इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल लेते हैं, लाइक सपोज कीजिए आई एम गोइंग 5 मीटर, मैं 5 मीटर ट्रेवल कर रहा हूं और साथ में ये गिवन हो गया कि मैं 5 मीटर जा रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गई गाइस आपकी वेक्टर क्वांटिटी और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को गाइस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें 5 मीटर ये आपका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट आपकी डायरेक्शन है। सपोज आपको ये बोला कि आप 10 किलोमीटर चल लिए हो बट आपको कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो गाइस दिस इज योर डिस्टेंस और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, तो ये गाइस स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो हमें एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। अब गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आपके पास कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस वायर है। रेजिस्टेंस वायर मतलब कोई भी एक वायर जिसको लेके मैंने सर्किट लगा रखा है। ओके, नाउ वी हैव अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ ये सर्किट कंप्लीट है, बैटरी का पोटेंशियल V है। अब आप इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, अभी मैंने लेटर ऑन एग्जाम आपको एक्सप्लेन किया था, आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 90% स्टूडेंट ये बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, सपोज जैसे I = 50 एम्पियर, तो आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड तो है ही और सर्किट में मुझे डायरेक्शन भी दिख रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट बननी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। So I'll say this is wrong। क्यों? गाइज कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तभी वेक्टर क्वांटिटी होगी जब वो वेक्टर के सर्टेन लॉ को फॉलो करे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम इंडिया में रहते हैं, हम भारतीय हैं। सपोज कीजिए कोई दूसरा इंडिया में आए और कुछ साल रहे, क्या वो अपने आप को भारतीय बोल सकता है, ये भारत की नागरिकता ले सकता है? नहीं। कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, अगर वो उस रूल को फॉलो करता है और रूल्स के बेस पर वो एग्जैक्टली डिफाइंड करता है, तभी वो भारतीय हो सकता है। वही चीज है, कोई वेक्टर क्वांटिटी तभी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है चाहे उसके पास डायरेक्शन हो या नहीं हो, जब वो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करे। आप इंडियन लॉ को फॉलो करेंगे देन यू आर ओनली इंडियन। चाहे आप बाहर भी रह के कुछ सालों बाद इंडिया में आके रहते हो, आपको सर्टेन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। लोग डिसाइड करेंगे कि आप इंडियन है कि नहीं है। सेम यही होता है, वेक्टर्स के लॉ होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आप वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल को। नाउ ये एक सर्किट है, इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट डाउनवर्ड आ रही है और 5 एम्पियर करंट अपवर्ड आ रही है। यहां पे एक जंक्शन पॉइंट है और यहां पे मैंने एक अमीटर कनेक्ट कर रखा है। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करती है और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू मिल रही है। गाइस जब मैं अमीटर से इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता हूं तो मुझे मिलती है 15 एम्पियर। नाउ अब वेक्टर का लॉ आप एक जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन गाइस ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। वेक्टर एडिशन क्या होता है? इफ टू क्वांटिटीज आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनका मैग्नीट्यूड, सपोज कीजिए P क्वांटिटी है, Q क्वांटिटी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा यानी कि जो इनका रिजल्टेंट R रहेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा। इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन नहीं दे रहा इसलिए मैंने एरो हटा दिए हैं, ठीक है। नाउ इफ दो क्वांटिटी, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ इफ दो क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज गाइस P वेक्टर और ये आपका है Q वेक्टर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं गाइस, आपको बताता हूं 11 की एक मिस्टेक, कि ये डायरेक्शन इधर जा रही है तो वो एरो की डायरेक्शन भी इधर कर देते हैं। गाइस ये रॉन्ग है। एक्चुअली एरो सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि गिवन क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, नथिंग। ये डायरेक्शन को नहीं बताता, ये सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करता है कि गिवन क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ अब वेक्टर एडिशन लो बोलता है, अगर दो क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका रिजल्टेंट रहेगा जो बड़ी क्वांटिटी उसमें से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर दो। नाउ ये रूल यहां पे अप्लाई करते हैं। 10 एम्पियर और 5 एम्पियर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हमारे पास वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करूं तो 10 - 5, हमारे पास आंसर आना चाहिए था 5, बट अमीटर बोलता है आंसर आ रहा है 15। दैट मींस इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया। इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो आई कैन से
As we know, electric current is not following the vector law of addition, so electric current is not a vector quantity. आप इलेक्ट्रिक करंट को क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी गिवन हो, सपोज कीजिए ऑप्शन में आपको टेंसर क्वांटिटी गिवन हो, तो टेंसर क्वांटिटी राइट आंसर रहेगा. अगर टेंसर नहीं गिवन हो और स्केलर गिवन हो, तो स्केलर राइट आंसर रहेगा. अगर स्केलर और टेंसर दोनों गिवन हो, बोथ गिवन, तो आंसर टेंसर ही रहेगा गाइस. और टेंसर क्या होता है ये आपने 11th में पढ़ा होगा. सो आप इसको राइट डाउन कीजिए. नाउ गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है फॉर द नीट एंड जेईई, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नो, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है गाइस वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज करता है तो करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं गाइस. सपोज कीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए. आगे जाके ये कंडक्टर कुछ ऐसा और वाइड हो जाता है एंड देन ये कंडक्टर बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है. एंड नाउ गाइस ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज A1, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A2 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा गाइस A3. नाउ सपोज कीजिए A1 से हमारे पास जो करंट एंटर कर रही है दैट इज I. ओके, नाउ A3 से जो करंट लीव आउट करेगी, यहां से जो करंट लीव आउट करेगी सर्किट में, वो भी I रहेगी गाइस. इट डजंट मैटर. अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे A2 इज ग्रेटर देन A1 is greater than A3. That means A3 सबसे छोटा और A2 सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है. बट इन तीनों क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए इलेक्ट्रिक जो करंट रहेगी, करंट वो I ही रहेगी. दैट मींस I क्रॉस सेक्शन एरिया एक बार सर्किट में एंटर करने के बाद क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती. इफ I एंटर कर रही है देन वापस करंट I ही निकलेगी. नाउ गाइस दिस इज आवर डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि ड्यूरिंग दिस लेक्चर आपको नोट खुद ही प्रिपेयर करने हैं. इसके लिए आप बीच बीच में लेक्चर को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन राइट डाउन योर नोट्स. ओके, सो प्लीज स्टडी हार्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन बाय. जय हिंद, जय भारत.